So let us begin with the doubts first, and the first doubt of today's class is question number 15. So the question is y equal to sec inverse 1 plus x square by 1 minus x square. Now if you check the rules, if you see the rules जो मैंने दिया है तुम लोग को rules of substitution, if you check that rules, according to that rules you find that x के जगह पे यहाँ पे हम लोग को क्या substitute करना है? We have to substitute tan theta at the place of x. So we find that y will become sec inverse 1 plus tan square theta divided by 1 minus tan square theta. Now tell me everyone, what is the formula of 1 minus tan square a by 1 plus tan square a? You just have to check the formula of trigonometry and you will find that 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to how much? It is equal to cos 2a. ये cos 2a का फॉर्मूला है. तो फिर 1 plus tan square a by 1 minus tan square a किसका फॉर्मूला हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? It will be 1 by cos 2a. It will be 1 divided by cos 2a. Are you understanding my point? I mean this formula 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. If it is equal to cos 2a by 1, so what will be 1 plus tan square a by 1 minus tan square a? It will be 1 by cos 2a. Okay? तो फिर ये हो जाएगा 1 by cos 2 theta. 1 by cos 2 theta can be written as sec 2 theta. And what is sec inverse of sec 2 theta? It is equals to 2 theta. I repeat, what is sec inverse of sec 2 theta? It is equal to 2 theta. And last में हम लोग क्योंकि x के जगह पे tan theta पुट किया हम लोगों ने, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर x tan theta है तो थीटा हो जाएगा tan inverse x. बस थीटा की जगह पे tan inverse x रिप्लेस कर दो. Differentiate, you will get the answer. So dy by dx is equal to 2 constant है बाहर, tan inverse x का differentiation है 1 by 1 plus x square. So this is the answer. Comfortable? This was, I mean, quite simple one because अगर देखा जाए तो रूल से डायरेक्ट मैच कर रहे हैं. रूल्स में ये दिया ही मत. रूल्स में देखो तुम लोग 1 minus x square by 1 plus x square tan theta पुट करना दिया ही हुआ है रूल्स में. So the next question is number 6 का 21. We have y equal to sin inverse x by under root 1 plus x square plus cos inverse 1 by root over 1 plus x square. ये क्वेश्चन. So रूल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूल्स के हिसाब से देखो मैंने लास्ट वीक बताया था लास्ट क्लास में कि देखो हम लोग को जरूरी नहीं है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पूरा का पूरा रूल्स में दिया रहेगा. तुम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ पार्ट को देख के भी पता करना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है. देखो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि हम लोग को x के जगह पे tan थीटा पुट करना है. मतलब अगर देखा जाए तो रूट के अंदर अगर 1 plus x square हो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 1 plus x square हो तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है. एक x के जगह पे tan थीटा पुट करने का और दूसरा x के जगह पे cot थीटा. क्यों tan और cot ही ऑप्शन में? Because 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Number 1. And if I put cot theta, 1 plus cot square theta will be equal to cosec square theta. तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है. लेकिन ये दोनों ऑप्शन में मुझे tan theta पुट करना चाहिए इस समय. क्यों? देखो इसका मैं कारण बता रहा हूं. 1 plus tan square theta is sec square theta. Sec square theta का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? Sec theta. And 1 by sec theta will become how much? Cos theta. Number 1. दूसरा नंबर पॉइंट जब यहां पे हम tan theta पुट करेंगे तो देखना साइन में आ जाएगा आंसर. Okay, so let us put at the place of x tan theta. ऑप्शन तुम लोगों के पास दो ही है. x के जगह पे या तो हम tan theta पुट कर सकते हैं या फिर हम cot theta. बट हमारे पास इस समय जो दोनों ऑप्शंस में से क्लिक कौन सा कर रहा है, कौन सा मतलब सब्स्टिट्यूट करना बेटर है? tan theta. So we find that y will be equal to sin inverse tan theta
divided by square root of 1 plus tan square theta plus cos inverse 1 by root over 1 plus tan square theta। अब इसके बाद देखना 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। सेम वे यहाँ पे भी 1 plus tan square theta is sec square theta। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा sec theta। Okay, now what we can do, we can express everything in terms of sin and cos। मतलब हम लोग सभी चीजों को sin और cos में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर tan थीटा हो जाएगा sin थीटा by cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा sin थीटा by cos थीटा, and 1 by sec थीटा, देखो ध्यान से 1 by sec थीटा will become cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा sin थीटा by cos थीटा, and 1 by sec थीटा will become cos थीटा। 1 by sec theta is equal to cos theta। Now यहाँ पे cos theta cancel हो गया, so here we are getting sin inverse of sin theta, और यहाँ पे cos inverse of cos theta will become cos theta, sorry theta, यहाँ पे भी theta आ जाएगा, so theta plus theta becomes 2 theta, and last में हम लोग क्या करेंगे, theta के जगह पे tan inverse x पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y equal to 2 tan inverse x। Now differentiate, you get that। Now the next doubt is number 7 का मुझे 3 दिख रहा है, then 4, 3 and 4। So ध्यान से एक बार नोट करना 7 का 3 and 4। So let's take first of all number 3, and these sums are very important, please make sure। चलिए बात बताओ तो सम नंबर 7 का 3 में रूल्स के हिसाब से यहाँ पे कौन सा रूल्स काम करेगा बताओ, तो कौन सा मतलब यहाँ पे x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बताओ। yes tell me, if you see the rules, if you check the rules, रूल्स के हिसाब से यहाँ पे x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बताओ। cos 2 theta, वेरी सिंपल, cos थीटा cos 2 थीटा बोलो या cos 4 थीटा बोलो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हम सिर्फ cos थीटा पुट करें तो भी हो जाएगा, cos 2 थीटा पुट करें तो भी हो जाएगा। क्यों cos 2 थीटा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि 1 plus cos 2 थीटा will get reduced to 2 cos 4 थीटा, और यहाँ पे अगर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया, और 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा, बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ इज करेक्ट। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। So let us put at the place of x equals to cos 2 theta, or you say cos theta, okay, anything। तो फिर ये हो जाएगा y equal to sin inverse square root of 1 plus cos 2 theta minus square root of 1 minus cos 2 theta। One plus cos 2 theta is equal to 2 sin cos square theta, square root कितना है, 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta। टू cos square theta का स्क्वायर रूट will become root 2 cos theta, और ये हो जाएगा root 2 sin theta। ऑलराइट एवरीवन, अब ध्यान से नोट करना ये वाला पार्ट। नाउ लेट अस स्प्लिट विद द डिनोमिनेटर। अगर हम लोग ये टर्म्स को देखो एक बार ध्यान से, ये दोनों टर्म्स को अगर डिनोमिनेटर के साथ हम स्प्लिट कर दें, डिनोमिनेटर के साथ अगर हम दोनों टर्म्स को अलग अलग स्प्लिट कर दे अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को दो फॉर्म, देखो ध्यान से एक बार क्या मिलेगा अगर हम स्प्लिट कर दे तो, सो वी विल गेट रूट 2 बाय
2 into cos थीटा, ठीक है, माइनस √2/2 into sin थीटा। Next, now tell me everyone, what is √2/2? √2/2 can be reduced to what? 1/√2. 1/√2, क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 into √2। देखो ये लाइन में ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे देखो रिड्यूस, अगर देखा जाए तो रिड्यूस उतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब हमको इसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान देना एक बार, मतलब सबसे पहले दिमाग में ये लाएंगे कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसका मतलब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके साइन थीटा लाना है, पहला नंबर पॉइंट। तो फिर हम दिमाग में लाएंगे हम साइन थीटा का फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है। अगर देखो यहाँ पे cos थीटा या sin थीटा है, मतलब मेरे दिमाग में और बीच में माइनस है, तो दिमाग में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। कौन सा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला? यू ऑल नो दैट sin A into cos B minus cos A into sin B can be reduced and written as sin of A minus B. Yes or no, tell me everyone. Sin A into cos B minus cos A into sin B can be reduced and written as sin of A minus B. All right, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे cos B है, थीटा है, और यहाँ पे 1/√2 है, ठीक है, 1/√2, मतलब 1/√2 के जगह पे साइन लाना पड़ेगा, साइन फंक्शन। तो कोई बता सकता है कि 1/√2 को हम साइन क्या लिख सकते हैं, बताओ? Sin π/4. sin π/4 लिख सकते हैं। सो वी हैव साइन इनवर्स sin π/4 into cos थीटा, तो ये हो गया sin π/4 into cos थीटा माइनस, अब बताओ मुझे 1/, देखो यहाँ पे sin थीटा है, तो 1/√2 को हम क्या लिखना चाहिए मुझे, sin π/4 या फिर cos π/4, क्या बताओ? Cos π/4. देखो क्योंकि सीधा सा बात है, sin का फॉर्मूला में लाने के लिए sin cos sin का फॉर्मेशन होना चाहिए, sin cos sin A into cos B, cos A into sin B, sin A into cos B है, तो यहाँ पे cos A into sin B होना चाहिए, sin B तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1/√2 को क्या लिखेंगे, cos π/4। Now you find that this expression can be reduced and written as sin of π/4 minus theta, ठीक है, sin A into cos B minus cos A into sin B is equal to sin of A minus B। ओके, अब देखो ये हो गया π/4 minus theta, and what is the value of theta now? अगर मान लो हम लोगों ने x को cos 2 थीटा लिया है, तो फिर 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x, पहला पॉइंट, और थीटा क्या हो जाएगा, हाफ इनटू cos इनवर्स x, ठीक है, हाफ इनटू cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू cos inverse x, and finally let's differentiate। So we have dy by dx equals to π/4 is a constant, इसका डेरिवेटिव 0, हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, and ddx of cos inverse x is -1/√1 minus x square। This is the answer। now finally इसको क्या लिख सकते हैं, dy by dx equals to minus plus 1/2√1 minus x square। All right everyone, okay, copy it first। So the next doubt is question number 4। 7 का question number 4 is the next doubt, and here we find that the question is y equal to cos inverse x minus x to the power minus 1 by x plus x to the power minus 1। So everyone wrote down। Can you tell me like इस समय क्या किया तुम लोगों ने, जिसका हो चुका है, can you tell me कैसे किया तुम लोग, कैसे? तो x to the power -1 को 1 by x लिख के, वेरी सिंपल, पहले उसको सिंपलीफाई करके उसके बाद फिर तो रूल्स, डायरेक्ट रूल्स को ही मैच कर रहा है कि नहीं, देखो डायरेक्ट रूल्स का ही ये जो एक्सप्रेशन है डायरेक्ट रूल्स को मैच करेगा। पहले हम लोग x to the power -1 को 1 by x लिख सकते हैं, then we will take LCM। So if we take LCM we'll get
x square minus 1 by x, x square plus 1 by x. X gets cancelled and we have x square minus 1 by x square plus 1. Can you check the root? देखो रूट्स में लिखा हुआ है क्लियरली कि 1 minus x square by 1 plus x square हो तो फिर x की जगह tan थीटा लगा, लेकिन अगर x square minus 1 by x square plus 1 हो तो क्या करना है? Cot theta. क्यों बताओ तो cot थीटा, क्योंकि cot जब लगाएंगे हम लोग तो cot को 1 by tan लिखेंगे तो फिर वो फॉर्मूला में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x के जगह पे we will put x equals to cot theta, x की जगह cot theta लगा दो। Okay, and then you just simplify this. तो cot में cot सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने x की जगह पे, इसके बाद cot को tan में एक्सप्रेस कर देना। We can write cot square theta as 1 by tan square theta. Then take LCM. So if I take LCM, we will get 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. है कि नहीं? देखो तो इसमें LCM जो है इन दोनों का tan square theta है, इसका भी tan square theta, तो पहले जो भी LCM आएगा वो तो कट जाएगा आगे, और न्यूमरेटर में बचेगा 1 minus tan square theta, and in denominator you find that you have 1 plus tan square theta. So what is 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta? It is equal to cos 2 theta. उसके बाद थीटा की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे cot inverse x. So we have y equal to 2 cot inverse x. Differentiate, you get minus 2 by 1 plus x square. Okay. उसी question number 7 का 9. We have y equal to tan inverse x divided by root over 3 minus x. So एक बार ध्यान से जो मैं अभी दूसरा सम लिख रहा हूं, अगर उसको ध्यान से एक बार कंपेयर करने का, अगर सपोज क्वेश्चन होता है tan inverse x by root over 1 minus x square, तो बताओ तो यहाँ पे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है? बताओ तो टेल मी एवरीवन। Sin theta. ये क्या पुट करना होता है? sin थीटा। क्यों sin थीटा? बिकॉज़ sin थीटा by 1 minus sin स्क्वायर थीटा is cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा is cos थीटा, एंड यू ऑल नो दैट sin थीटा by cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो एक बार ध्यान से ये वाला जो एक्सप्रेशन है tan इनवर्स x by root over 3 minus x square, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। देखो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होना चाहिए या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अगर 1 के जगह 2 3 कुछ भी होता है तो फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि x के जगह पे साइन थीटा पुट करना है, लेकिन साइन थीटा के साथ और भी कुछ सर रूट 3 sin थीटा पुट करना पड़ेगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। क्यों रूट 3? देखो इसका कारण ये है कि अगर हम रूट 3 यहाँ पे पुट करेंगे तभी तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। जब 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन हो जाएगा। तो ये इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चंस नंबर 6 का ही सारा क्वेश्चंस है, लेकिन 6 नंबर में जैसे 1 माइनस x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 की जगह 2 3 4 इस तरह कुछ दे दिया जाएगा, x के जगह पे ax 2x 3x ऐसे कुछ दे दिया जाएगा। तो तुमको वैसे दिमाग लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको नंबर 6 तक तुम्हारा अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाके ये सब चीज क्लियर होगा। ये चीज को एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह रूट 3 sin थीटा पुट करेंगे। सो यू विल गेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3 sin थीटा बाय 3 माइनस x की जगह रूट 3 sin थीटा पुट करेंगे
√3 sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लेना है, तो बच जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वन माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच cos स्क्वायर थीटा। इसका जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन का, तो फिर 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √3 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिखो cos थीटा, √3 gets cancelled and we will get finally sin theta by cos theta equals to tan. What is tan inverse of tan theta? It is equal to theta. अब लास्ट में थीटा की जगह पे यहाँ से रिप्लेस कर देना बाय इन टर्म्स ऑफ x। कैसे? अगर √3 sin थीटा x है तो फिर sin थीटा क्या हो जाएगा x by √3। थीटा क्या हो जाएगा sin इनवर्स x by √3। थीटा हो जाएगा sin इनवर्स x by √3। Then you can differentiate and get that. Copy down fast. Now, in order to understand question number 10, I am giving you one more question beside this question. Okay. We have tan inverse x by 4 plus square root of 16 minus x square. ठीक है, ये क्वेश्चन। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बता ध्यान। Suppose we have tan inverse x by 1 plus square root of 1 minus x square. अब बताओ तो इस सम में हम लोग को x की जगह क्या पुट करना है बताओ। 4 sin थीटा। नहीं इस सम में इसका बात कर रहा हूँ। sin थीटा वेरी सिंपल sin थीटा, तो sin थीटा आ जाएगा ऊपर 1 minus sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट cos थीटा, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। sin थीटा को 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 लिख के सॉल्व हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या है इस सम में और इस सम में, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 16 है, तो हम लोग को x की जगह पे क्या पुट करने से, देखो x की जगह sin थीटा पुट करना है वो तो क्लियर है, एकदम क्लियर है सबका, लेकिन x की जगह पे हम सिर्फ sin थीटा पुट करेंगे तो 16 माइनस sin स्क्वायर थीटा है। मुझे 16 कॉमन लेके इस फार्मूला में लाना है। कौन सा फार्मूला? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ, हम sin थीटा के साथ क्या चीज मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि वो हो जाएगा बताओ? 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा 16 sin स्क्वायर थीटा, फिर 16 कॉमन है इसको सॉल्व करें। ओके, तो इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। नंबर 10 इस तरह से कर लेना तुम एक बार इसको कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 12। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। 4 sin थीटा क्यों? क्योंकि यहां पे इन दोनों टर्म्स में से 16 कॉमन है लेना। वन माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा एंड 16 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बन जाएगा 4 cos थीटा। टेक 4 कॉमन और इस 4 से कैंसिल कर, ठीक है, इन दोनों में से 4 कॉमन लेके इस 4 से कैंसिल कर दो, फिर तो एकदम सिंपल बच सिंपल सब बहुत बार किया। Now everyone note down question number 12. Question is y equal to cos inverse 2 minus 3 to the power x by 2 plus 3 to the power x. Everyone note down. एक बार ध्यान से नोट करना सबसे पहला पार्ट कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, टेल मी क्या सब्स्टिट्यूट करना होता बताओ? tan थीटा tan थीटा पुट करना होता है। अब मुझे बताओ तुम लोग
x के जगह tan थीटा पुट करना था क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब मुझे बताना, सपोज क्वेश्चन ये रहता, सपोज क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस 3 टू द पावर x बाय 1 प्लस 3 टू द पावर x। अब बताओ तो क्या पुट करना? 3 to the power x को tan थीटा 3 टू द पावर x को tan थीटा ले, tan थीटा या सिर्फ tan थीटा से हो जाएगा? tan square tan theta. square थीटा tan स्क्वायर थीटा लेना पड़ेगा बिकॉज़ tan थीटा से कहां होगा 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा होता है। होगा क्या ये देखो? नहीं होगा। tan स्क्वायर थीटा लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम व्हाट cos 2 थीटा, और ये cos इनवर्स है तो हो जाएगा सर। अब बताओ मुझे यहां पे 3 टू द पावर x, देखो 1 के जगह पे 2 है, मतलब 2 माइनस 3 टू द पावर x बाय 2 प्लस 3 टू द पावर x। तो कोई दिमाग लगा सकते हैं कि यहां पे क्या पुट करना है? 2 tan square थीटा 2 tan square theta. वेरी सिंपल, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से दिमाग लगाओ, समझ में आया? तो ये तरीके से हम लोग को दिमाग लगाना है, मतलब ये सब चीज तुमको रूल्स में कहीं नहीं मिलेगी, सीधा सी बात। रूल्स में अगर खोजोगे तो तुमको ये सब चीज नहीं मिलेगी, तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब तुम्हारा सम नंबर 6 में, वापस बोल रहा हूँ, सम नंबर 6 अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है तो सम नंबर 7 कोई हिसाब से नहीं हो, 6 को 2 बार करना पड़ेगा तुमको, तब जाके 7 नंबर का लॉजिक समझ में आएगा। आई थिंक सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो हो जाएगा। थीटा की जगह पे यहां से वैल्यू लिख लें, 2 tan square theta is 3 to the power x, tan square theta is 3 to the power x by 2, tan theta is root under 3 to the power x by 2, so theta will be tan inverse, ठीक है? थीटा की जगह पे हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा? tan inverse square root of 3 to the power x by 2, and then you I'll not show the differentiation part because I hope everyone will be able to do. Okay, copy down. Question number 13, I don't think now you will face any problem. In question number 13, if you have doubt now, check once. जिसका डाउट होगा नंबर 13 में अब हो जाना चाहिए। कोई बता सकता है नंबर 13 में कहां पे क्या पुट करना है? 4 to the power x को tan square थीटा। Very simple. 12 13 एक जैसा ही डाउट था, ठीक है? नंबर 18 ना, ठीक है? 18 ध्यान से सुनना है। So the next doubt is number 18. And 18 number is, don't you have doubt number 17? 17 हो गया क्या? 17 मैंने लास्ट डे शायद करा दिया, क्लास में किया होगा शायद नंबर 17, sin इनवर्स रूट अंडर x by a plus x, शायद ये क्लास में हुआ था। इस टाइप का भी सब हुआ था बहुत सारे, ये जो टाइप है वही नहीं है। तो बताओ तो नंबर 18 में क्या पुट करना? tan inverse 2x by 1 minus x square, पहला नंबर पॉइंट ये देखो, और दूसरा 2 tan a by 1 minus tan square a का फॉर्मूला देखो ध्यान से। अब बताओ मुझे ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला tan 2a 2a, ठीक? तो बताओ तो इस जगह पे क्या पुट करना है? x की जगह tan की theta जगह tan है tan थीटा, देखो रूल्स में भी दिया हुआ। अब बताओ तुम यहाँ पे क्या करना है? यहाँ सर ये चीज़ 6 to the power x की जगह tan है पुट कर दो। tan वही tan, मतलब लास्ट डे हमने इस तरह का सब डिस्कस भी किया। यू रिमेंबर लास्ट डे हम लोगों ने इस तरह का सब डिस्कस किया था। कैसे? 2 देखो ध्यान से 2 into 6 to the power x, ठीक है? मतलब 2 into x,
मतलब यहाँ x है, यहाँ x की जगह 6 to the power x, तो डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर होना चाहिए। देखो यहाँ है 36 to the power x का मतलब क्या होगा? Thirty-six to the power x is same as 6 to the power x का whole square. So here we can put at the place of 6 to the power x tan theta. इसके बाद कुछ नहीं है, हो जाएगा। Then last find is number 22. 22 किसका? 22 में क्या पुट करना है बताओ तो एक बार। Yes. 22 नंबर सब में क्या पुट करना है? नंबर में क्या पुट करना है? नहीं पता? cos theta. सिंपल cos थीटा। cos थीटा या cos थीटा की बात। One minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, and 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. 2 gets cancelled. Now what is sin square theta by cos square theta? It is equal to tan square theta under square. Then square root of tan square theta क्या होगा? tan theta. अब मुझे कोई बता सकता है ये लाइन के बाद कैसे करना है इसका? ये सही है। क्या हम लोग tan थीटा को cot 90 minus theta लिख सकते हैं? See, tan theta is equal to cot of 90 minus theta. And what is cot inverse of cot pi by 2 minus theta? It is pi by 2 minus theta itself. Okay. Finally, sin square, एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 minus theta का whole square. And tell me what is sin 90 minus theta? बताओ. cos theta. cos theta. पूरा का होल स्क्वायर। थीटा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? सॉरी ये तो दूसरा क्वेश्चन है। थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? cos 2 theta. थीटा की जगह पुट करेंगे हम लोग हाफ cos इनवर्स। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा कैन राइट cos स्क्वायर थीटा इज 1 plus cos 2 थीटा by 2। चेक कर लो एक बार सब कुछ। क्या हम लोग cos स्क्वायर थीटा को 1 plus cos 2 थीटा होल 3 by 2 लिख सकते हैं? फॉर्मूला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा? x, डायरेक्ट x है, just differentiate you get that. ओके, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 plus cos 2 थीटा by 2 लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का वैल्यू क्या है? x के टर्म्स में आके डिफरेंशिएशन कर आंसर। So this is your last doubt.